سوال یہ تھا کہ آپ مسلمانوں کے 72 فرقے ہیں، 72 فرقوں میں جب کوئی ہندو مسلمان بنتا ہے تو اس کو کون سا فرقہ دیا جائے یا کون سا فرقہ پہنایا جائے؟ زیادہ تھوڑی سوالات میں غلطی ہے تو معذرت۔ بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے، بہت اہم سوال پوچھا ہے۔ اس نے کہا کہ اگر میں نے صحیح سنا، میں ڈھونڈ رہا تھا کدھر ہے، پتہ چلا کہ بارادری میں، اگر میں صحیح سنا انہوں نے کہا کہ اسلام میں 72 فرقے ہیں، اور اگر کوئی غیر مسلم بنتا ہے تو کون سے فرقے میں داخل ہوگا؟ بھائی صاحب اسلام میں 72 فرقے نہیں ہیں، یہ اسلام میں نہیں لکھا ہے کہ اسلام میں 72 فرقے، قرآن میں بھی نہیں لکھا ہے، حدیث میں نہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مسلمان 72 فرقے میں بٹیں گے۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ بناؤ فرقے، قرآن مجید میں لکھا ہے فرقہ بنانا حرام ہے۔ سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 158 159 159 وہاں لکھا ہے کہ جو بھی فرقے بنائیں گا یہ رسول تجھ کو اس سے لینا دینا کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ اسے دیکھیں گا۔ قرآن کے کئی آیتیں فرقے بنانا حرام ہے، اس کے باوجود ترمذی کی صحیح حدیث ہے، حدیث نمبر 171، جہاں اللہ کے رسول فرماتے کہ مسلمان جس طریقے سے عیسائی نے یا یہودی نے 71 فرقے بنائے، عیسائی نے 72 بنائے، مسلمان 73 بنائیں گے، 73 not 72 73 73۔ تو اللہ کے رسول فرماتے کہ مسلمان بنائیں گے، اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ بناؤ۔ اب سمجھ رہے؟ قرآن میں صاف کہا گیا ہے فرقے بنانا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں مت بٹو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن اور صحیح حدیث۔ تو فرقے بنانا حرام ہے اسلام میں، لیکن پھر بھی بنائیں گے۔ آپ کا سوال ہے اگر کوئی غیر مسلم بنتا ہے تو کون سے فرقے میں جائیں گا؟ وہ مسلمان بنے گا۔ قرآن کی کئی آیتیں قَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہو کہ میں مسلم ہوں۔ قرآن میں کہاں نہیں لکھی کہ باقی کچھ کہو۔ تو اسلام ایک ہی مذہب ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم اپنی مذہب کو تبدیل کرے گا، ہم کہیں گے اسے اسلام میں داخل ہو۔ اپنے آپ کو کیا بولو؟ مسلمان، مسلم، فل سٹاپ۔ اگر کوئی شخص ندوہ سے پڑھا اپنے آپ کو ندوی بولتا، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ کوئی دیوبند سے پڑھا دیوبندی بولتا، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ مدینہ سے پڑھا ہے مدنی بولتا، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن دینی لقب سے مسلم، صرف مسلم۔ ہم مسلمان ایک ساتھ ہونا چاہیے، دنیا بھر میں بٹے ہوئے، چاہے پاکستان ہو، چاہے ہندوستان ہو، کوئی بھی استان ہو، ہم مسلمان آپس میں کیوں جھگڑے؟ جیسے کہ میں نے کہا کل اور پہلے بھی، یہ جو چاروں ائمہ ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ہم چاروں کی عزت کرتے، چاروں بڑے بڑے علماء تھے، کئی ائمہ تھے، بٹ یہ چاروں کے جو طلباء تھے انہوں نے اور فیمس کیا۔ یہ چاروں ائمہ ماشاءاللہ اپنے ذہن سے ہمیں دین سمجھانے لگے، اور میرے نزدیک جب میں یہ چاروں ائمہ کی کتابیں پڑھا ہوں اور علماء کے ساتھ میں اسٹڈی کیا ہوں، میرے والد شافعی تھے، میں رتنا گری سے ہوں، بمبے میں پیدائش ہے، تو بچپن میں شافعی پڑھانے آتے تھے میں، بٹ میرے والد ماشاءاللہ بہت کھلے ذہن کے تھے، وہ سارے علماء سے بہت قریب تھے، اور گھر پہ ایوری سیکنڈ ڈے علماء آتے تھے، حنفی آتے تھے، شافعی آتے تھے، اہل حدیث آتے تھے، ماشاءاللہ۔ مجھے یاد ہے کہ بچپن میں مجاہد القاسمی، قاضی مجاہد القاسمی
हनफी फिक के बड़े फ़क़ीह है, इंतकाल हो गया, अल्लाह उन्हें जन्नत फिरदौस नसीब फरमाए। तो पहली बार जो सीखा मैं हनफी मज़हब के बारे में वो थे काजी मुजाहिदुल कासमी के साथ, फिर अली मियां नदवी के साथ घर पे आते थे, मैं उनको मिलने जाता था जब वो मुंबई आते थे। भाई मौलाना पारेख है, ये सब लोग से ताल्लुक थे। फिर मुख्तार नदवी साहब अहले हदीस के अमीर, मेरे वालिद साहब जितने अमीर है सब लोग को माशाअल्लाह या घर पे आते थे, हम उनको मिलने जाते थे। और मैं तो बच्चा था पहले, 15 साल का, 20 साल का, 25 साल का फिर हुआ, और मैं इनसे सीखता था। मैं कोई मदरसा नहीं गया, लेकिन बड़े बड़े उलमा के साथ में बैठा और दीन सीखा। फिर सऊदी अरेबिया गया, शेख अब्दुल अजीज सुरैफी, शेख सालिम मुनज्जिद, उनका मयार कुछ अलग है। शेख ददू मालकी स्कॉलर है, दुनिया में आज लोग कहते नंबर 1 पे का 2 पे, लेकिन टॉप 5 में तो है ये सब लोग। उनसे बैठे, उनके साथ सीखे, ज़हन खुला। सबसे पहली बार जब मैं अरबी सीखने गया था, अरबी में महारत मुझे नहीं है, डॉक्टर फा अब्द रहीम इंडिया से है, लेकिन उनने एक नया शुरू किया था मदीना यूनिवर्सिटी में गैर अरब को अरब सिखाने के लिए। तो सबसे पहले उस्ताद जो मेरे बाहर के थे वो डॉक्टर फा अब्द रहीम थे, और वो कहते थे कुरान में इतने बार भी पढ़ो, कहाँ लिखा ने अपने आप को हनीफी बोलो, शाफी बोलो, देवबंदी बोलो, मदनी बोलो या सल्फी बोलो, कुरान में निकला है क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। और देखे जाओ तो 95% सेम है, कुछ थोड़ा ऊपर नीचे होगा, कोई कहता हाथ ऊपर रखना अफजल है, कोई कहता नीचे करना। मैं तहकीक करता हूं, तहकीक करने के बाद मैं बहुत सख्त हूं फॉलो करने के लिए, लेकिन तहकीक करने के बाद मैं जो कहता हूं कि मैं भी सही हूं, ये आम लोग बोलते हैं मैं ही सही हूं, ये प्रॉब्लम है। मैं ही सही हूं, आई एम ओनली राइट, आई से आई एम ऑल्सो राइट। इस्लाम में माशाअल्लाह इतना वाइड स्कोप है। ये छोटे छोटे बात पे इख्तिलाफ पे रफतन करना चाहिए कि नहीं, हाथ का मानना, जो इस पे झगड़े होते, डिबेट होते, और चारों अइम्मा ये मानते हैं अगर आप कोई दूसरे अइम्मा पे अमल करते तो कोई गुनाह नहीं है, और मैं भी उसको मानता हूं, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे एडवांटेज दिया है कि मैं मुख्तलिफ अइम्मा, मालकी तो यही नहीं है, मलकिया, शेख मोहम्मद हसन दद्दू नाम सुना ही नहीं होगा। कौन सुना शेख मोहम्मद हसन दद्दू का नाम? एक भी हाथ ने, हाँ एक दो हाथ है उधर। शेख मोहम्मद हसन दद्दू मोरटानिया के है, मेरे बहुत करीब है, और आज की तारीख में लोग कहते हैं वो सबसे बेस्ट आलिम है, बट बेस्ट नहीं, टॉप 5 में तो आएंगे। हदीस की नॉलेज, कुरान की नॉलेज की है, वो सीखा उनसे। अभी कतर में रहते, कतर ने सिटीजनशिप दे दी उनको, मोरटानिया के शेख अब्दुल अजीज सुरैफी, तफसीर में महारत है उनकी माशाअल्लाह। वो मुझे बुलाया, मैं बोला कौन है तफसीर, मैं भी नहीं जानता था, मैं बिजी था। मैं बोला बहुत बिजी हूं मैं। मॉर्निंग में एक जन ने कहा मोहम्मद अल अरीफी, मोहम्मद अरीफी का नाम सुने आप? मोहम्मद अल अरीफी अरब वर्ल्ड में बहुत फेमस है हो। मैं बोला बहुत बिजी हूं मैं, मॉर्निंग में आ सकता हूं? अच्छा 7 बजे आओ ब्रेकफास्ट के लिए। 7 बजे गया। शेख अब्दुल अजीज सुरैफी बोले कभी भी आएंगे चलेगा। मैं बोला अच्छा मैं आता हूं 12 बजे। 12 बजे गया, 4 बजे तक ये था। मुझे पता नहीं कौन थे शख्स, बाद में पता चला इतने आलिम मेरे से यंग है, उनका इल्म। वो कहने लगे मेरे कोई पाकिस्तानी स्टूडेंट से आपकी इतनी तारीफ की है, फिर मैं आपका तर्जुमा देखा वीडियो पे और मेरी ख्वाहिश है आपसे मिलने की। मैं उनके इल्म के हिसाब से 0.0001% भी नहीं हूं। ये उलमा है। शेख अब्दुल अजीज सुरैफी, शेख सालिम मुनज्जिद, इस्लाम क्यूएनए सुने .info, सबसे फेमस वेबसाइट फतवे के बारे में। वो फतवा भी देंगे तो बोलेंगे अबू हनीफा ने ये कहा, इमाम शाफी ने ये कहा, अच्छा ये चीज अफजल है। ये तरीका है आपस में झगड़ने का थोड़ी। तो वो लोग को देखो इतने बड़े बड़े आलिम,
कभी भी नहीं कहते मैं आप हनफी है, अगर पढ़ते रफत नहीं करते नो प्रॉब्लम, वो कहीं ठीक हमारे नजदीक ये अफजल है। ये इख्तिलाफ क्यों है? इख्तिलाफ है क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस ऑफ फिक्र। अभी कोई फॉलो करेगा एलोपैथी, कोई फॉलो करेगा यूनानी, ये 95% सेम है। और जो इख्तिलाफ भी है वो छोटी छोटी बात पे, फरूरी बात पे, उसके ऊपर झगड़ने की जरूरत क्या है? मैं तो सारे उलमा से मिलता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, इल्म हासिल करता हूं, और वो मुझे इज्जत देते तो मुझे शर्म आती, वो मेरा माथा चूमते तो मुझे शर्म आती। इतने बड़े आलिम बोलते नहीं नहीं आप तकाबले अध्ययन में माहिर है। अरे भाई मैं माहिर नहीं हूं, मैं स्टूडेंट हूं भाई। वहां के बड़े बड़े अरबोपति बिलियनर मेरे गाड़ी का दरवाजा खोलते, शर्म आती। अरब लोग अल्लाह ने इज्जत दी है, तो दीन की कदर करते, नौक दाई की कदर करते, शर्म आती है। जहां तक के मुसलमान है, जो गैर मुस्लिम देखता है वो यही देखता है कि हनफी है कि शाफी है कि देवबंदी है कि बरेली है। वो मुसलमान है, मारो, हम आपस में झगड़ते। हम अगर एक हो जाएंगे, हम मुसलमान एक हो जाएंगे, तो कोई माई का लाल हमें कुछ छू नहीं सकता है। माफ करना जरा, जबान मेरी बंबई की हो गई। इंशाअल्लाह कोशिश तो कर रहे, हम कोशिश ही कर सकते, बाकी अल्लाह पे छोड़ते। जो भी अल्लाह ने आपको सलाहियत दी है उसका इस्तेमाल करो। अगर अल्लाह ने सलाहियत दी मुझे बात करने की, और बात करने के टाइम में मैं चुप बैठ जाऊंगा, अल्लाह मुझसे सलाहियत ले लेगा, क्या डरने का। हम तो अल्लाह का पैगाम फैलाने के लिए आए, जिंदगी वक्फ कर दी, तो क्या डरना। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान में, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103 में, वातसीमो बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और आपस में मत बंटो। आपके पास भी इस मुल्क में बड़े बड़े उलमा हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी इकोनॉमिक्स के अंदर, इस्लामिक इकोनॉमिक्स में आज के तारीख में नंबर 1 है। मुफ्ती तकी उस्मानी का नाम तो सुना होंगे आपने, जानते होंगे, लेकिन आज की तारीख में नंबर 1 है। और एक शख्स थे जो इंतकाल हो गया, उनका नाम है डॉक्टर हामिद हुसैन हसन। किसने डॉक्टर हामिद हुसैन का नाम सुना? थोड़े लोग नहीं सुना। आप पाकिस्तान में रह के डॉक्टर हामिद हुसैन का नाम नहीं सुना तो प्रॉब्लम है। आप डॉक्टर हामिद हुसैन इजिप्शियन है, मिस्री है, जो इस्लामाबाद में उनने इस्लामिक यूनिवर्सिटी कायम की। आपकी फैजल मस्जिद तो है, किसने बनाया? डॉक्टर हामिद हुसैन हसन इकोनॉमिक्स के माहिर है। शेख तकी उस्मानी, मुफ्ती तकी उस्मानी, अरब वर्ल्ड में शेख बोलते, इंडिया पाकिस्तान में मुफ्ती मौलाना बोलते, तो शेख अलग अलग लक़ब देते। ये दोनों माहिर है, फादर ऑफ इस्लामिक इकोनॉमिक्स। उनने 19 साल, वो कहते थे, मुझे काफ़ी करीब थे मेरे, अभी इंतकाल हो गया, 19 साल इस्लामाबाद में वो थे, और बेनज़ीर भुट्टो से लैंड ली और $500 बिलियन कलेक्ट किया बाहर से, और इस्लामिक यूनिवर्सिटी कायम की। तो जब मैं 1991 में आया था तो मैं बोला मैं जाके दिखूं से, तो वहाँ डॉक्टर अनीस अहमद रेक्टर थे। अभी इस्तिकबाल करने के लिए अभी के जो रेक्टर है डॉक्टर मोहम्मद इलियास, माशाअल्लाह, उनको मुलाकात हुई थी मेरी। तो आपके मुल्क में भी माशाअल्लाह स्कॉलर्स है। हम हमारे स्कॉलर्स की इज्जत नहीं करते। अगर हम उल्मा की इज्जत करेंगे, दाई की इज्जत करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपका भी औहदा बढ़ाएगा। और मेरी हमेशा ख्वाहिश है कि स्कॉलर्स को मिलना। तो 1991 में मैं आया था डॉक्टर ईसा अहमद को मिलने, और मिलके मेरी जिंदगी बदल गई। एक शेख दीदात थे, दूसरा डॉक्टर ईसा अहमद थे, और मेरा शौक है उल्मा से मिलना, तो जहां भी जाता हूं उल्मा से मिलता हूं।
علماء سے مل مل کے اللہ نے تھوڑی سی نالج مجھے بھی دے دی، لیکن میں مختلف علماء سے ملا، مختلف، حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی، سلفی، اہل حدیث، ماشاءاللہ۔ چند لوگوں کو موقع ملتا ہے جیسا اللہ نے مجھے دیا۔ اسی لیے میری ہمیشہ ہے کہ میں اپنے کو بولتا ہوں قال اننی من المسلمین۔ عملی طور پہ چاروں ائمہ نے کہا، آپ کو کوئی بھی فتویٰ ملا جو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف ہے، فتوے کو چھوڑ دو، تو عملی طور پہ میں پکا حنفی، پکا شافی، پکا حنبلی، پکا مالکی، پکا اہل حدیث، پکا سلفی۔ میں تحقیق کرتا ہوں، عمل کرتا ہوں۔ یہ سب میرے ائمہ ہیں، اور اب جائیں گے، اگر باہر نکلیں گے پاکستان اور انڈیا کے بعد، یہ علماء کو ملیں گے، یہ عالم سب لوگ کی عزت کرتے۔ میں بھول گیا اور ایک بڑے عالم کے ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی، ہندو تھے، وہ میرے استاد تھے حدیث میں، ہندو برہمن تھے، 19 یا 20 سال کی عمر میں اسلام قبول کر کے مکہ بھاگ گئے، پھر کائرو جا کے سیکھے حدیث، پھر مدینہ یونیورسٹی کے ڈین بنے، ڈین۔ میں نے حدیث ان سے سیکھی، ہندو سے، تو مسلمان بن گیا۔ تو الحمدللہ اللہ نے مجھے اتنا نوازا، کیونکہ امریکہ سیکھنے کے بعد نہ میں امریکہ کے پیچھے بھاگا، نہ میں سیکھنے کے بعد اللہ نے سارا دور کرایا، امریکہ کا بھی دور کرایا، آسٹریلیا کا بھی، لندن کا بھی، UK کا، نام لو شہر میں ہوں میں، لیکن دعوت کرنے کے لیے۔ تو جو بھائی صاحب کا سوال تھا کہ اگر کوئی غیر مسلمان بنتا ہے، اسے کہنا چاہیے مسلم بنو، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانو، قرآن مجید پہ عمل کرو اور صحیح حدیث پہ عمل کرو، اور اپنے آپ کو مسلم کہو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں جنت میں لے کے جائیں گا۔ اور دعا ہے کہ ہم پاکستانی بھائی، ہندوستانی بھائی، جتنے بھی مسلمان ہیں اور بہنوں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے، کیونکہ اردو میں تقریر کر رہا ہوں تو پاکستانیوں اور ہندوستانی، تھوڑے بنگلہ دیشی کو بھی اردو آتی ہے۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے، آپس میں جو اختلاف ہے اسے چھوڑ دو۔ کوئی پتھر پھینکتا ہے، اپنے آپ کو اتنا اونچا کرو کہ پتھر آپ پہ نہیں پہنچے۔ میں کبھی بھی کوئی بھی میرے خلاف بات کی، میں اس کا جواب دیتا ہی نہیں ہوں۔ خالی میرے سٹاف کو بولتا ہوں دیکھو بھائی میں نے کچھ غلطی کیا اور وہ صحیح کہہ رہے تو مجھے بولو، میں سدھر جاؤں گا۔ کیونکہ ہمیں اللہ اور اللہ کی رسول کی بات ماننا چاہیے۔ اور اپنا بڑپن یہ ہے کہ ہندوستان میں کیا کرتا ہوں، جو میرے خلاف بات کرتا ہوں ان کو بھی میں نے اسٹیج پہ بلاتا ہوں، بات کرو، کیونکہ میں ان سے کہتا ہوں کہیں بھی قرآن میں، کہیں بھی حدیث میں نہیں لکھا ہے کہ آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف ہے تو جنت میں نہیں جائیں گے، برابر؟ میں کوئی بھی قرآن کی آیت پڑھا بھی نہیں، نہ حدیث پڑھا۔ یہاں تو مارا ماری، میں ویڈیو کھولتا ہوں تو پاکستانی کے تو ایک علماء دوسرے علماء کو گالی دے رہا ہے، کیا ہو رہا ہے یہ؟ اگر مجھے کوئی گالی دیتا میں بولتا ہوں بھائی قرآن میں کہیں نہیں لکھے، حدیث میں کہیں نہیں لکھے، کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو گالی دیں گے تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے۔ میری شرط ہے کہ آپ اللہ میں مانو، اللہ کے رسول میں مانو، ان کی بات کرو، میں آپ کو میرے اسٹیج پہ بلاؤں گا، میرے خلاف بات کرو، نو پرابلم۔ یہ کرنے کی وجہ سے کئی جو میرے دشمن تھے میرے دوست بن گئے، جو اسٹیج سے میرے خلاف بات کرتے تھے میرے فیور میں بات کرنے لگے۔ جب مجھے ہجرت کرنے پڑا تو الحمدللہ سارے اکثر 95% جتنے ادارے ہیں، جتنے علماء ہیں، سب لوگوں نے سپورٹ کیا۔ بولا ذاکر نائک کے ساتھ ہمارا اختلاف ہوگا الگ بات ہے، لیکن ہم وہ ٹیررسٹ نہیں ہیں، وہ تکابر ادیان کے اس میں ماہر ہے، میں نے کہتا ہوں ہماری نو کہتے۔ تو یہ آپ محبت پھیلاؤ، اور آپس پہلا ہی پوچھیں گے بھائی کون سے فرقے کے آپ، اور فرقے کے اندر فرقے میں فرقے ختم ہی نہیں ہوئے گا۔ ہمارا صرف ایک ہی دین ہے، اسلام، ایک ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، آخری نبی ایک ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم جڑ کے رہے،
आपस में मोहब्बत से रहे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हम मुसलमान जो अल्लाह की आयत कुंतुम खैरा उम्मतन उखरिजत लिन्नास, अल्लाह ताला कहते हैं हम सबसे बेहतरीन कौम है सारी उम्मत में। लग रहा तो नहीं है? इंशाअल्लाह अगर कुरान की रस्सी को पकड़ेंगे इंशाअल्लाह हम सबसे बेहतरीन कौम होंगे। जिस तरीके से हमारे साहबाज थे अल्लाह के रसूल के वक्त पे, हमारे खुलफा राशिदीन थे, वी वांट टॉप ऑफ द वर्ल्ड। दुआ करते कि हम उस टाइम पे रह के मुसलमान भी इंशाल्लाह वापस टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे रहे इंशाल्लाह। सवाल ये है कि मैंने ये भी सुना है कि जब रमज़ान शरीफ का महीना आता है तो 30 दिन जन्नत के दरवाजे खुले रहते हैं और दोज़ख के दरवाजे बंद हैं, लेकिन उस 30 रमज़ान के रोज़े या महीने के उस रमज़ान के महीने के अंदर कोई हिंदू मर जाता है तो वो कहाँ जाता है? ऐसा कोई अच्छा सवाल है और वो सही सवाल है। सवाल क्यों कभी बोलना नहीं चाहिए कि ये गलत है, गलत सवाल है, गलत है तो साबित करना चाहिए। भाई साहब कई सवाल है और ये कोट कर रहे हैं हदीस की, और कई हदीस है अल्लाह के रसूल की बुखारी में और बाकी हदीस कि रमज़ान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला जन्नत के दरवाजे खोलता है और दोज़ख के दरवाजे बंद होते हैं। भाई साहब ने एक हदीस बोलने भूल गए कि शैतान भी कैद रहते हैं। तो 3 सवाल साथ में है कि अल्लाह ताला शैतान को कैद करता है। तो भाई का सवाल है कि अगर रमज़ान के 30 दिनों में कोई हिंदू मरता है तो किधर जाएगा वो, कहाँ जाएगा? कोई सवाल पूछता है कि अगर शैतान इस चेंड मतलब कड़ी, हथकड़ी तो नहीं बोल सकते, कड़ी चेन, शैतान चेन से बंधा हुआ रहता है। तो शैतान चेन से बंधा होता है फिर भी हम देखते गुनाह होते हैं। भले रमजान में गुनाह कम होते, गुनाह तो होते हैं ना। तो शैतान जब चेंज होता है तो गुनाह कैसे होते? ये भी सवाल है कि नहीं? अगर शैतान अल्लाह ताला चेंज करता है रमजान में, ये तो रमजान में फिर भी चोरियां होती क्या नहीं? कम होती है, फिर भी लोग शराब पीते कम पीते। तो जब शैतान चेंज है तो कैसे ये गलतियां होती हैं, कैसे ये गुनाह होते हैं? जहां तक कि पहले सवाल का जवाब है कि दोज़ख के दरवाजे बंद होते और जन्नत के दरवाजे खुल जाते। अगर कोई हिंदू रमजान के महीने में मरता है तो कहाँ जाएगा? वो जाएगा पहले बरज़ख में। कहाँ जाएगा? बरज़ख मतलब इंटरम पीरियड। इंसान मरने के बाद जन्नत में डायरेक्ट नहीं होता है, वो बरज़ख में रहता है। बाद में हशर के मैदान में कब उठाए जाएंगे, हिसाब किताब होगा। फाइनल सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 185। द फाइनल रिकम्पेंस इज ऑन द डे ऑफ जजमेंट। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स की मौत होगी। आखिरी हिसाब किताब होगा फाइनल, कभी ऑन द डे ऑफ जजमेंट, क़यामत के दिन पे। और जो भी कोई जहन्नम की आग से बचेगा और जन्नत जाएगा, वो इस दुनिया में सफलता पाए। ये कुरान की आयत है। फाइनल हिसाब किताब कब होगा? यौमुल क़यामह में, इधर नहीं। तो रमजान में अगर बंद भी है तो वो जाने वाला है बरज़ख में। बाद में तो खुलेंगे ना रमजान के बाद। रमजान के बाद तो दरवाजे खुलेंगे कि नहीं? जी हाँ, खुलेंगे ना। खुलेंगे। तो अगर उसने शिर्क किया, अल्लाह और अल्लाह की उसकी बात नहीं माना, तो उसको बरज़ख में पहले पड़ेंगे, उसको सजा मिलेंगी बरज़ख में। जन्नत के दरवाजे खुले रहेंगे, दोज़ख के दरवाजे भी खुल जाएंगे तो जब टाइम आएगा तो वो दोज़ख में जाएगा। बिल्कुल। ये सवाल तो आसान था। ये दूसरा सवाल और पेचीदा है। अगर शैतान चेंड है तो गलतियां कैसे होते? फिर भी तो गुनाह होते कम होते। अब सर्वे करेंगे तो रमजान में गुनाह कम हो जाते दुनिया भर में। इसने सर्वे किया था
जब शैतान चेंड है फिर भी कैसे गुनाह होते हैं? और ये सवाल मुझे बहुत परेशान किया जब मैं दावती मैदान में अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने पूछा नहीं, बहुत परेशान किया, लेकिन अल्लाह ने जवाब दे दिया। और रिसर्च किया कहाँ पढ़ा नहीं, मैं जवाब ढूंढा, आलिम से पूछा, सही है, बोले माशाअल्लाह क्या जवाब है, फिर देने शुरू कर दिया। क्योंकि मैं पहला ही सवाल करता हूँ, मैं खुद अटैक करता हूँ डिफेंड करने के लिए। अगर आपको डिफेंड करने का है तो अटैक सीखना जरूरी है। आप डिबेट जब करते हैं, आपको अगर कुरान को डिफेंड करना है तो अटैक करना भी सीखना पड़ेगा। अटैक करने में अच्छे तो खुद डिफेंड कर सके। तो मैं इसका जवाब देता हूं कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि शैतान चेन होते हैं, चेन में बांधे जाते। शैतान मर नहीं जाते, जिंदा रहते, लेकिन चेन में होता है। मैं मिसाल की तौर देता हूं। मिसाल के तौर पे एक शेर है, शेर बब्बर, वो चेन के अंदर है और चेन है 10 फीट लंबी, और आप दूर खड़े तो आपको पता है चेन एकदम मजबूत है, तो आप डरेंगे नहीं, बराबर के नहीं डरेंगे ना। चेन मजबूत है लेकिन 10 फीट लंबी है, तो आप 30-40 फीट से देखेंगे, महफूज रहेंगे क्या नहीं? रहेंगे क्या नहीं? हाँ क्या नहीं जी? अगर शेर बब्बर या शेर जी चेन है और 10 फीट लंबी चेन है, जी हाँ। आप 30 फीट से दूर है, चेन मजबूत है, आप महफूज रहेंगे क्या नहीं? जरूर खौफ तो होगा। डरपोक रहेंगे तो खौफ रहेगा ना, जी बराबर के नहीं? ऐसा तो शेर के बिना भी आपको खौफ आ सकता है भाई। कुत्ते को देख के भाग जाएंगे आप, बिल्ली को देख के भागेंगे, लेकिन अगर आप 30 फीट दूर है तो आप महफूज है क्या नहीं? हाँ क्या नहीं? हाँ क्या नहीं? बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब याद, लेकिन अगर आप शेर के करीब जाएंगे तो क्या होगा? खाएगा। तो अल्लाह के रसूल जब कहते हैं कि रमजान में शैतान चेंड है, उसका मतलब आप शैतान के करीब मत जाओ। आप रमजान में बोलेंगे नहीं मैं जुए के अड्डे में जाऊंगा, रमजान है मैं शराब के अड्डे पे जाऊंगा, तो आप शराब पीएंगे, तो गलती किसकी? हमारी, आपकी। तो रमजान में जो शैतान का पावर कम रहता है, पर शैतान मरने जाते, चेंड रहते मतलब आप महफूज है अगर दूर है, लेकिन आप शेर के मुंह में हाथ डालेंगे वो चेन में भी तो आपको खा लेंगे, बराबर की नहीं? तो रमजान में आपको गुनाह से दूर रहना आसान है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। रमजान में अक्सर अब मदद रहती है अल्लाह की, लेकिन फिर भी आप बोलेंगे नहीं मैं जाऊंगा भाई शराब खाने में, नहीं फिर भी मैं पिक्चर देखूंगा, ब्लू फिल्म देखूंगा, तो प्रॉब्लम होगा ना। तो रमजान में सब उसका जो इंटेंसिटी रहता है शैतान की कम रहती, क्योंकि चेन रहता है। आप उसके करीब जाएंगे, उसके मुंह में हाथ डालेंगे तो खा लेंगे आपको, फिर आप गुनाह करेंगे। तो ये है अकली जवाब। सही जवाब तो अल्लाह आलम, ये अकली जवाब है। अगर हदीस सही है अपनी जगह पे, उसका मतलब आपको और तवज्जो देना चाहिए और आपको और वक्त है अल्लाह की इबादत करना रमजान में। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन।